ગરીબોને ઇલાજ હવે ફળશે, રોજગારીનો લારા લારી, એક ટોપી જે સહુ. જોરદાર તાળીઓથી વધાવીએ, બે હાથ ઊંચા કરીને ભારત માતા કી, ભારત માતા કી, ભારત માતા કી. આ ઉત્સાહ જ એટલો છે. તમારા ઉત્સાહ અને તમારા આનંદને નતમસ્તક વંદન કરીએ છીએ, કારણ કે જેમની આપણે આતુરતાથી રાહ જોઈએ છીએ. આ તો સમગ્ર દેશની ઉમ્મીદ છે, માત્ર ગુજરાત નહીં પણ હવે તો સમગ્ર દેશ એક ઉમ્મીદ લઈને બેઠો છે કે અરવિંદ કેજરીવાલ આવશે અને ગુજરાત અને ભારતના એક એક નાગરિકનું કંઈક સારું કરશે. પંજાબના મુખ્યમંત્રી પણ આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત છે. ફરીથી એકવાર જોરદાર તાળીઓથી વધાવીએ અને એક નારો જોરદાર બોલાવીએ, પણ પહેલેથી છેલ્લે સુધી. અને નારો એવો કે આ પડકારો છે ગાંધીનગરની અંદર વિધાનસભામાં જાડી ચામડીના બેઠા છે ને, એમના કાનના પડદા તૂટી જાય ને એવો નારો બોલાવવાનો છે. ભારત માતા કી જય જવાન, આમ આદમી પાર્ટી, આમ આદમી પાર્ટી. વાહ. હવે હું ધોરાજી વિધાનસભાના ઉમેદવાર માન્ય શ્રી વિપુલભાઈ સખિયા અને રાજકોટ જિલ્લાના પ્રમુખ માન્ય શ્રી જનકભાઈ ડાંગરને વિનંતી કરીશ કે આપણા રાષ્ટ્રીય સંયોજક માન્ય શ્રી અરવિંદ કેજરીવાલજીનું સ્વાગત કરે મોમેન્ટો આપીને. શ્રી વિપુલભાઈ સખિયા અને જનકભાઈ ડાંગર ઝડપથી આવે. માન્ય પંજાબના મુખ્યમંત્રી શ્રી ભગવત માન સાહેબનું હળ આપી અને ગોવિંદભાઈ વાલાણી સ્વાગત કરશે. દરેક કાર્યકર્તા મિત્રોને વિનંતી, એમને પધારેલ તમામ મહેમાનોને વિનંતી કે પોતાનું સ્થાન ગ્રહણ કરી લે, અને વોલેન્ટિયર્સ મિત્રોને પણ વિનંતી કે પોતપોતાનું સ્થાન ગ્રહણ કરે. જેમને હવે સાંભળવા છે, આમ તો 33 વર્ષના નવયુવાન છે, પણ જેમની વાણીમાં, જેમની ભાષામાં કામની વાત, મુદ્દાની વાત, મારા તમારા બાળકોના ભવિષ્યની વાત જેમના મુખે સાંભળવી ગણે અને જેમની વાણીમાં ભગતસિંહની છબીના દર્શન થાય, આમ આદમી પાર્ટીના પ્રદેશ અધ્યક્ષ માન્ય શ્રી ગોપાલભાઈ ઇટાલિયાને વિનંતી કરીએ કે આવો અને પોતાની વાત રજૂ કરે. શ્રી ગોપાલભાઈ ઇટાલિયા. બધાને આજના આ કાર્યક્રમમાં ઉપસ્થિત આપ તમામ આમ આદમી પાર્ટીના શુભચિંતકો, ગુજરાતની અંદર બદલાવ આવે એ માટે મહેનત કરી રહેલા કાર્યકર્તાઓ, દૂર દૂરથી પધારેલા સૌ મહેનતુ નાગરિકો, તમામને નવા વર્ષના રામ રામ, જય શ્રી કૃષ્ણ, સાલ મુબારક. આજે તમારો ઉત્સાહ એમ બતાવે છે કે નવા વર્ષમાં નવા જૂની થવાની તૈયારી થઈ ગઈ છે. થાય એમ છે કે નહીં? નવા જૂની. નવા વર્ષમાં 27 વર્ષની ગંદકી સાફ થવાની છે, ઝાડુ લાગવાનું છે અને પરિવર્તન આવવાનું છે. અને આજે ડબલ ધડાકા એવા બે બોમ્બ ફૂટ્યા છે કે ભાજપ વાળાના કાનના પડદા ફાટી જાય અને મજા બગડી જાય એવા બે બોમ્બ ફૂટ્યા છે. ગુજરાતના લોકપ્રિય યુવાન પાટીદાર આંદોલન સમિતિના કન્વીનર ભાઈ અલ્પેશ કથિરિયા આજે આમ આદમી પાર્ટીમાં જોડાયા છે. અને એવા જ વીર માંધાતા સંગઠનના કોળી સમાજના આગેવાન ભાઈ શ્રી રાજુભાઈ સોલંકી આજે આમ આદમી પાર્ટીમાં જોડાયા છે. બે બાજુ બે શક્તિશાળી સિંહ જેવા ભાઈઓ આજે આમ આદમી પાર્ટીમાં જોડાયા છે. મને એમ લાગે છે કે એમના ડબલ એન્જિનને ટક્કર આપવા ડબલ આપણી પાસે માણસો આવી ગયા છે, ડબલ યોદ્ધાઓ આવી ગયા છે અને ઘર ભેગા કરીને રહેવાના છે. આજે સમયની ખૂબ મર્યાદા છે, પાછું જવાનું છે સાહેબને. શોર્ટમાં 2-3 વાત કે ઘણા વર્ષોથી આખા સૌરાષ્ટ્રમાં, ખાલી ધોરાજીમાં નહીં, પાણીની બધે તકલીફ છે.
અને પાણીની તકલીફ એટલા માટે છે કે પાણી વગરનાને મત આપી આપીને ધારાસભ્ય અને સાંસદ સભ્યો બનાવ્યા છે એટલે પાણી આવતું નથી. એકવાર પાણીવાળાને મત આપો, ઝાડુવાળાને મત આપો, પાણીદાર આગેવાન બનાવો, આખા સૌરાષ્ટ્ર આખા ગુજરાતમાં પાણી આવશે. આ સાથે આપ તમામ અહીંથી આ સભામાંથી ઘરે જઈ હજારો લોકો સુધી અરવિંદ કેજરીવાલજીના વિચારો પહોંચાડો એવી મારી વિનંતી છે. જાજી વાત માનનીય અરવિંદ કેજરીવાલજી કરવાના છે. હું આપ તમામનો દૂર દૂરથી અહીંયા આવવા બદલ, સમય ફાળવવા બદલ, પરિવર્તનની આ લડાઈની અંદર એક સૈનિક બનવા બદલ આપ તમામનો ખૂબ ખૂબ આભાર વ્યક્ત કરું છું. જય જય ગરવી ગુજરાત. હવે આપણે જેમને સાંભળવા છે અને પંજાબના લોકોએ જેમના ઉપર ભરોસો મૂક્યો છે એમને એક પંક્તિમાં હું કહેવા માંગુ છું કે ભલે ને હોય નિરાશા, હું આશાઓનું ફાનસ છું. ભલે ને હોય નિરાશા, હું આશાઓનું ફાનસ છું. કર તું ઘા ફાવે એટલા, હું ભરોસાનો માણસ છું. પંજાબના લોકોએ જેના ઉપર ભરોસો મૂક્યો અને 27 વર્ષમાં આ લોકોએ કામ નથી કર્યા એટલા 7 મહિનામાં કરીને બતાવ્યા છે એવા પંજાબના મુખ્યમંત્રી માનનીય શ્રી ભગવત માન સાહેબને વિનંતી કરીએ કે પોતાની વાત રજૂ કરે. बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद. आज गुजरात की धरती पर एक परिवर्तन की लहर चल रही है और उस लहर की अगुवाई कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी, जिन्होंने पहले दिल्ली में एक लहर की अगुवाई की थी, उसके बाद पंजाब, अब गुजरात. मेरी तरफ से सब जितने लोग भी आप इतनी भारी संख्या में चल के आए हो, आपका एक एक कदम हमारे सर माथे पर, आपने घर से बाहर कदम निकाला, समझ लो आपने इतिहास लिख डाला कि परिवर्तन के लिए जा रहे हैं. आज यहाँ पे आपका आना हमारे लिए बहुत हौसला बढ़ाने वाली बात है. सबको मेरी तरफ से आपको प्रणाम, नमस्कार, सत श्री अकाल. दोस्तों, हम कोई शक्ति प्रदर्शन करने नहीं आए, हम कोई बड़े बड़े लारे झूठे वादे करने नहीं आए. हम तो आपसे बातें करने आए हैं, और बातें भी कोई इधर उधर की नहीं, बातें भी वही हैं जो आप लोग घर के चूल्हे के सामने बैठकर करते हो. बातें भी वही हैं जो चाय की रेहड़ी पर खड़े होकर करते हो. बातें भी वही हैं जो बस स्टैंड पर, रेलवे स्टेशन के आसपास बैठकर करते हो कि हमारे परिवार का भविष्य क्या है, गुजरात का भविष्य क्या है, देश का भविष्य क्या है. ये बातें करनी आपसे. इससे पहले आपसे किसी ने ऐसी बातें नहीं की. आपको सिर्फ और सिर्फ जिंदाबाद और मुर्दाबाद के नारे लगाने के लिए कच्चे माल के तौर पे इस्तेमाल करते रहे ये नेता लोग. लेकिन अब नहीं चलेगा. देश 130 करोड़ लोगों का है, देश तुम्हारा है. हिसाब लो इनसे कि इन्होंने 75 साल में जितना देश को लूटा है, 75 साल हो गए आजादी को, लेकिन आजादी हमारे घरों में पहुंची नहीं. मैं तो जब से होश संभाला है, 15 अगस्त को जब लाल किले से प्रधानमंत्री जी जो भी होते हैं तत्कालीन, वो बोलते हैं, मैं सुनता हूं, वही भाषण चल रहा है जी. अफसरों का लिखा हुआ भाषण है, रटा रटाया भाषण है, कुछ नया नहीं है उसमें. गरीबी पर चिंता व्यक्त, महंगाई पर थोड़ी ज्यादा चिंता व्यक्त, बेरोजगारी पर और ज्यादा चिंता व्यक्त, आतंकवाद पर सबसे ज्यादा चिंता व्यक्त कि अपने अपने घर जाओ. ये था 15 अगस्त. यही सुन रहे हैं भाई. ऐ मेरे देश के वारिसों, ऐ मेरे देश के वारिसों, जिन्होंने जो देश चला रहे हैं, मैं उनसे बोल रहा हूं कि अब तो लाल किले के कबूतरों को भी भाषण याद हो गए होंगे. अगर जनता की किस्मत नहीं बदल सकते, भाषण तो बदल लो. भाषण भी वही चल रहा है जी. कोई जरूरत ही नहीं भाषण बदलने की, खुद ब खुद बारी आ जाती है. जनता एक से तंग हो के दूसरे के पास, दूसरे से और ज्यादा तंग हो के फिर पहले के पास. पहले आपके पास बदल नहीं था, अब एक बदल के रूप में आए हैं. मुझे एक गुजराती लड़का मिला, मैंने कहा भाई गुजरात क्या चाहता है? कहता जी गुजरात चाहता है परिवर्तन, चेंज. मैंने कहा अच्छा, गुजरात चेंज चाहता है.
तो मैंने कहा चेंज कौन है फिर? कहते जी आम आदमी पार्टी। मैंने कहा कांग्रेस नहीं है? कहते कांग्रेस अब चेंज नहीं, कांग्रेस तो एक्सचेंज है। वो तो कभी इधर बिक जाते हैं, कभी उधर बिक जाते हैं। कांग्रेस तो कोमा में चली गई है। कांग्रेस की हालत उस 90 साल बुजुर्ग की तरह हो गई जिसको डॉक्टर भी बोल देते हैं घर ले जाके सेवा कर लो, इसमें कुछ नहीं है अब। वो तो इलेक्शन लड़ भी नहीं रहे इधर, वो तो उधर ही पता नहीं कहाँ घूम रहे हैं। और उनको वोट देने का कोई फायदा नहीं। आपका कीमती वोट जो है ना, वो उसका सौदा करते हैं। वो जितने आपने पिछली बार जिताए थे उनमें से 22 बीजेपी में हैं, कभी भी चले जाते हैं। तो उनसे बचना। और आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में 7 महीने हुए बनी है, जो गारंटियां दी थी उससे ज्यादा कर रहे हैं। 20,000 सरकारी नौकरियां निकाल के उनको नियुक्ति पत्र देके उनको स्टेशन पे कुर्सियों पे बिठा के आए हैं हम। 20,000 लड़के लड़कियों को 8436 टीचरों को रेगुलर किया, पक्की नौकरी दी। आउटसोर्सिंग ठेका सिस्टम बंद करें पंजाब में, सभी को पक्के करना है। और मुझे पता चला गुजरात में तो पुलिस भी कच्ची है, पुलिस वाले भी कॉन्ट्रैक्ट पे हैं। कमाल है। अब फौज भी कॉन्ट्रैक्ट पे आती है। तो आम आदमी पार्टी ने वादा किया था बिजली, दिल्ली में तो पहले ही बिजली मुफ्त चल रही थी, पंजाब में वादा किया था। तो विपक्ष वाले कह रहे थे पैसे कहां से लाओगे? हमने 1 जुलाई से बिजली 300 यूनिट पर मंथ फ्री कर दी। 74 लाख घरों में से 50 लाख घरों को जीरो बिल आता है जी, जीरो बिल। नीयत अच्छी हो सब कुछ हो सकता है। हमने पैसे कहां से लिए? हमने विधायकों की पेंशन बंद कर दी। करोड़ों लेते थे, पेंशन के रूप में करोड़ों लेते थे, पैसे बच गए। हमने भ्रष्टाचार खत्म कर दिया। जो भ्रष्टाचार का पैसा था वो खजाने में गया, वो खजाने में से हमने बिजली फ्री कर दी। अरविंद केजरीवाल जी ने जो 350 करोड़ का पुल बनना था दिल्ली में, ओवरब्रिज, वो 200 करोड़ में बना दिया। 150 करोड़ रुपया बच गया, उससे दवाइयां फ्री कर दी। ऐसे करते हैं भाई। सरकार का काम यही होता है कि लोगों से टैक्स ले और उस टैक्स को बिजली के रूप में, स्कूलों के रूप में, अस्पतालों के रूप में, कॉलेजों के रूप में, यूनिवर्सिटियों के रूप में, सड़कों के रूप में, इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में वापस पब्लिक को दो। वापस पब्लिक के पास पैसा आना चाहिए टैक्स का। ये खा जाते हैं। आप कहते हो कि हम तो टैक्स नहीं देते। आप में बहुत से आदमी बैठे होंगे जो सोचते होंगे हम तो टैक्स ही नहीं देते। मैं आपको बताता हूं आप कब टैक्स देते हो। सुबह जगते हो, चाय बनानी है, माचिस की तीली जलाई, टैक्स शुरू। तीली लेने जाओगे, टैक्स है। गैस सिलेंडर है, जैसे ही लाइटर की स्विच दबाई, टैक्स शुरू, गैस पे टैक्स है। उसके बाद चाय पत्ती डाली, टैक्स। चीनी डाली, टैक्स। दूध डाला, टैक्स। दही खाया, टैक्स। अब तो परांठे पर भी 18% टैक्स। और उसके बाद आपने मोबाइल फोन किया किसी मित्र को कि मैं तेरे यहां दुकान पे आ रहा हूं, टैक्स। मोटरसाइकिल स्टार्ट किया, टैक्स। डीजल वापस आए, टैक्स। सब्जी लाए बाजार से, टैक्स। खाना खाया रात को, टैक्स। और सोते समय आप सोचते हो शुक्र है अब कोई टैक्स नहीं भाई साहब, गलतफहमी में हो, ऊपर पंखा चल रहा है, टैक्स। भाई हम तो 24 घंटे टैक्स दे रहे हैं, हम तो सोते हुए भी टैक्स दे रहे हैं। पैसा कहां चला जाता है? खजाने क्यों खाली हो जाते हैं? खजाने को खाली कौन करता है? खजाने को खाली यही करते हैं जी। इनसे खजाना जो है ना वो निकलवाना है और आपको देना है। एक एक पैसे का हिसाब लेना है, इस देश के एक एक पैसे का हिसाब लेना है, तब ठीक होगा काम। ये कोई मुश्किल काम नहीं है, हमने पंजाब और दिल्ली में करके देख लिया। ये तो इतने डरे हुए हैं। पंजाब में एक मंत्री खुद ब खुद ही आ गया 1 करोड़ रुपया लेके विजिलेंस के अफसरों के पास कि मेरा नाम निकाल दो, जांच मत करना। उनका मुझे फोन आया, जी क्या करें? मैंने कहा अब तो नाम डाल दो इसका। और उसके घर से नोट गिनने वाली मशीन मिली है। नोट गिनने वाली मशीन कोई घर पे रखता है जी? उससे नोट ही गिनते होंगे और उससे कोई ताश तो खेलते नहीं होंगे। नोट गिनने वाली मशीनें इनके घरों में हैं
और नोट किसके हैं? आपके। इनके वो पढ़ना, जब ये इलेक्शन लड़ते हैं तब प्रॉपर्टी का बेरवा देना पड़ता है। मैं बताता हूं, बठिंडा से इलेक्शन लड़ी एमपी की हरसिमरत कौर, जो कि प्रकाश सिंह बादल जो मुख्यमंत्री रहे 5 बार, बहू है उनकी, सुखबीर बादल की पत्नी है। उसने क्या भरा? बाकी तो करोड़ों है ही, बाकी तो करोड़ों है ही। सोना कितना है उसके पास मैं बताने वाला हूं। अगर मां बहन कोई दिल की मरीज है वो अपने कानों पे हाथ रख सकती है। कितना भरा कि कितना सोना है मेरे पास? 23.5 किलो। 23.5 किलो लिख के दिया। कहां से आया भाई साहब ये सोना? ये सोना हमारा है। हमारे बच्चों के हिस्से की पढ़ाई खाते हैं तब सोना बनता है। हमारे बुजुर्गों के इलाज के हिस्से की दवाई खाते हैं तब सोना बनता है। हमारे नौजवानों का रोजगार खाते हैं तब सोना बनता है। सड़कें खाते हैं, कॉलेज खाते हैं, स्कूल खाते हैं, तब जाके सोना बनता है। हमारे घर में ये नहीं पता शाम को खाना बनेगा या नहीं बनेगा। ये सोने में खेल रहे हैं, ये हीरे मोतियों में खेल रहे हैं। तो इसके लिए जिम्मेदार थोड़ा थोड़ा हम भी हैं, लेकिन हमारा उतना कसूर नहीं है। हमारे पास कोई पहले विकल्प नहीं था। मैं तो आपको धन्य मानता हूं, 27 साल एक ही पार्टी। अरे हर साल तो दरख्त भी पत्ते बदल लेता है, कुछ तो बदलो। दरख्त को, पेड़ को भी पता चले कोई नई हवा, नया सूरज, नई धूप आई है, और उसका नाम है आम आदमी पार्टी। और झाड़ू से सफाई करो, और झाड़ू जहां चलती है वहां सफाई होती है। इस झाड़ू से पहले इससे पहले इस झाड़ू से हम सिर्फ दुकान या मकान साफ करते थे। अब इस झाड़ू से अरविंद केजरीवाल की अगुवाई में पूरा हिंदुस्तान साफ किया जाएगा जी, पूरा हिंदुस्तान। आम लोग हैं हम, ये बैठे हैं, आम घरों के हैं। कोई वकील है, कोई पत्रकार है, मैं कलाकार था। अरविंद केजरीवाल जी IRS ऑफिसर थे, इनकम टैक्स के कमिश्नर थे। चाहते तो ये भी बहुत नोट कमा सकते थे, लेकिन नोट कमा के उतनी इज्जत नहीं मिलती जितनी लोगों के दिलों में जगह बना के, खाता खुलवा के मिलती है। इसीलिए तुम इतने लोग आ गए, वरना आजकल भाई को भाई नहीं पूछता भाई साहब, सगे भाई को नहीं मिलने जाता, कोई बहन को नहीं मिलने जाता। आप इतनी संख्या में आ गए, गर्मी है, हम आप प्रबंध भी नहीं कर सके पानी का अच्छे तरीके से। हमारे पास पैसे नहीं है, लड़ाई आपको लड़नी पड़ेगी। मेरे पास 92 MLA हमारे, 117 में से 92 सीटें आई हैं। 92 में से 82 MLA आम घरों के बेटे बेटियां पहली बार MLA बने हैं पंजाब में। तो ये होती है जब जनता लड़ती है, जब जनता इलेक्शन लड़ती है, तो आप लड़िए, आप लड़िए। चुनाव चिन्ह हम देंगे, सफाई करिए। जो गुस्सा है 27 साल का निकाल लेना, जो गुस्सा 27 साल का निकाल लेना। एक बात मेरी याद रख लेना, पूरा भाषण भले ही भूल जाना कि भगवंत मान आया था, उसने ये बोला था कि जब इलेक्शन वाला दिन होगा तब अपने अपने भगवान को प्रणाम करके, जहां बूथ है पोलिंग वहां जाना। एक मशीन मिलेगी, उस मशीन के बटन के सामने एक चुनाव चिन्ह मिलेगा। ये बात याद रख लेना, वो बटन ना तो किसी हाथ पंजे का है, ना किसी कमल के फूल का है, ना किसी हाथी का है, ना किसी सीढ़ी का है, ना किसी बिसल का है, ना किसी झाड़ू का है। असल में वो बटन आपके बच्चों की किस्मत का बटन है भाई साहब। अगर सही बटन दबा दोगे, किस्मत चमक जाएगी, दोबारा किसी को पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर वही काम करोगे जो 27 साल से, फिर 5 साल और भी बीत जाएंगे, क्या उससे 5 साल और बीत जाएंगे, क्या होगा। तो हम तो, आप कोई लालच नहीं है, कोई मैंने यहाँ ठेके नहीं लेने, कोई मैंने यहाँ कोई अपना कोई सड़क का ठेका नहीं लेना, मैंने कोई कहा यहाँ पे कोई माफिया नहीं करना। मैं तो सिर्फ यही बताने आया हूँ कि भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, लाला लाजपत राय जी, चंद्रशेखर आजाद जी, ये सब लोग सिर्फ पंजाब या दिल्ली की आज़ादी के लिए नहीं लड़े थे, ये पूरे देश की आज़ादी के लिए लड़े थे। पूरा देश इनसे याद करवाना है। दोनों हाथ ऊपर उठाकर 2 नारे लगा दो, इनकलाब, इनकलाब, जय जवान, जय जवान, भारत माता की, बोले सो निहाल।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने इतने प्यार से सत्कार से मुझे सुना। तंदुरुस्त रहो, तरक्कियां करो, बहुत बहुत मेहरबानी। જોરદાર તાળીઓથી વધાવીએ ભગવતમાન સાહેબને। અને હવે જેમને સાંભળવા છે, सर मैं आपकी बात को कुछ बताना चाहता हूं कि आप जहां भी जाते हो कुछ ना कुछ गारंटी देते हो, लोगों के लिए गारंटी देते हो। तो ये सारे लोग आज जब आप आए, उनसे पहले हम जब यहाँ बीच में थे तो सारे लोग बोल रहे थे कि अरविंद जी जो जो गारंटी देते हैं, आपने गुजरात में आके बोला कि 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, तो वही काम हिमाचल के अंदर भाजपा वालों ने किया कि 125 यूनिट बिजली फ्री देंगे। मतलब कि आप जो बोलते हैं उनकी कॉपी करते हैं, आप जो बोलते हैं उनकी कॉपी करते हैं। तो एक बंदा यहां था, उसने मुझे कुछ लिख के दिया कि अरविंद जी के जैसा कोई हो नहीं सकता। क्यों? उसने लिख के दिया कि अपने संघर्ष को अपना जुनून बना लो, जब तक वो तुम्हारी कहानी ना लिख दे मत कोशिश करो मुझ जैसा बनने की, क्योंकि शेर पैदा होते हैं बनाए नहीं जाते। जोरदार ताड़ीओ थी आम आदमी पार्टी ना राष्ट्रीय संयोजक श्री अरविंद केजरीवाल जी ने विनंती करी कि પોતાની વાત રજૂ કરી। भारत माता की इनकलाब, वंदे वंदे। केम छो? मजामा। पूरे गुजरात में इस टाइम बदलाव की आंधी चल रही है, गजब का माहौल है। जहां भी जा रहे हैं लोग बड़े उत्साह के साथ आ रहे हैं। आप में से किस किस को बदलाव चाहिए? सबको बदलाव चाहिए। तो मैं आज आपके लिए खुशखबरी लेके आया हूं। केंद्र सरकार ने गुजरात का माहौल जानने के लिए अपनी खुफिया एजेंसी भेजी है, आईबी। आईबी का नाम सुना है? आईबी पिछले 15-20 दिन से घूम के गई है। आईबी ने केंद्र सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपी है। रिपोर्ट में लिखा है कि गुजरात के चुनाव में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। लेकिन रिपोर्ट में यह भी लिखा है कि अभी बड़े किनारे पे है, मार्जिन पे है। 90-92 सीट आ रही है। 90-92 सीट से काम नहीं चलेगा। 90-92 सीट आई तो ये तोड़ फोड़ के सरकार चलने नहीं देंगे। 150 सीट आनी चाहिए। आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? कम से कम 150 सीट आनी चाहिए। दिल्ली वालों ने रिकॉर्ड बनाया था, 70 में से 67 सीट आम आदमी पार्टी, 70 में से 3 सीट भाजपा। पंजाब वालों ने रिकॉर्ड तोड़ दिया, 117 में से 92 सीट आम आदमी पार्टी, 1 सीट भाजपा। गुजरात वालों, आप पंजाब का रिकॉर्ड भी तोड़ दो, 182 में से 150 सीट आम आदमी पार्टी की आनी चाहिए। 150 सीट आएगी तो पूरा स्थिर सरकार बनेगी, मजबूत सरकार बनेगी। सारे काम करेंगे, जितने काम, मैं भी सारे काम गिनाऊंगा जो जो आम आदमी पार्टी ने प्लान किया है। सबसे पहले भ्रष्टाचार खत्म करेंगे। करना है कि नहीं करना? इन लोगों ने गुजरात को 27 साल में लूट लिया। कहते हैं कि गुजरात सरकार घाटे में चल रही है। कैसे घाटे में चल रही है? अभी भगवंत मान साहब ने आपको बताया, हर चीज पे आप टैक्स देते हो, दूध पे, दही पे, रोटी पे, सब्जी पे, सुबह से उठ के रात को सोने तक हर चीज पे टैक्स देते हो। अरबों खरबों रुपए का टैक्स देते हो इन लोगों को। फिर गुजरात सरकार घाटे में क्यों चल रही है? मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, 27 साल में आपके गांव में इन्होंने कोई सड़क बनाई? आपके गांव में कोई स्कूल बनाया? कोई अस्पताल बनाया? कोई कॉलेज बनाया? कोई आपके लिए दवाई का इंतजाम किया? कुछ नहीं किया। फिर पैसा कहां गया? ये सारा खा गए सारा पैसा। एक एमएलए है, चुनाव के पहले उसके पास 4 एकड़ जमीन थी, 5 साल में 1000 एकड़ जमीन हो गई। कहां से आया पैसा? एक और एमएलए है, चुनाव के पहले 2000 रुपए महीने की नौकरी करता था एक दुकान में, 5 साल में 20,000 करोड़ का मालिक बन गया। 20,000 करोड़ का। आम आदमी पार्टी की सरकार बनने की, सारा पैसा वापस लेंगे, एक एक पैसे का हिसाब होगा गुजरात का जो लूटा इन लोगों ने।
सारा पैसा वापस लेंगे इन लोगों से, सारा पैसा वापस लेके आपके विकास के ऊपर खर्च होगा। गुजरात के टैक्स का, गुजरात सरकार का एक एक पैसा आपके और आपके परिवार के, आपके बच्चों के ऊपर खर्च होगा। भ्रष्टाचार मुक्त शासन देंगे। हमारा कोई एमएलए चोरी नहीं करेगा, हमारा कोई मंत्री चोरी नहीं करेगा, हमारा मुख्यमंत्री चोरी नहीं करेगा, और अगर कोई चोरी करेगा तो जेल जाएगा। हमारे वाला भी अगर कोई चोरी करेगा तो जेल जाएगा, छोड़ेंगे नहीं। मेरा बेटा भी चोरी करेगा, मेरा भाई भी चोरी करेगा, मेरा दोस्त चोरी करेगा, किसी को नहीं बख्शेंगे। कट्टर ईमानदार पार्टी है आम आदमी पार्टी, कट्टर ईमानदार सरकार है आम आदमी पार्टी की। एक एक गुजरात का पैसा, एक एक पैसा आप लोगों के भले के ऊपर खर्च होगा। आप सरकारी दफ्तर में जाते हो काम कराने के लिए, बिजली कनेक्शन लेना है, पानी का कनेक्शन लेना है, राशन कार्ड बनवाना है, प्रमाण पत्र बनवाना है, ओल्ड विधवा पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, कुछ भी काम कराना है, पैसे देने पड़ते हैं, रिश्वत देनी पड़ती है, नहीं देनी पड़ती है? 15 दिसंबर के बाद से नहीं देनी पड़ेगी। आपका सारा काम बिना पैसे के होगा, एक एक काम बिना पैसे के होगा, कोई पैसा नहीं लेगा। दिल्ली के अंदर रिश्वतखोरी बंद है, जनता का काम बिना पैसे के होता है। पंजाब के अंदर रिश्वतखोरी बंद कर दी, 6 महीने के अंदर रिश्वतखोरी बंद हो गई। किसी की हिम्मत नहीं है ऑफिसर की पैसा लेने की। दिल्ली के अंदर हमने ऐसा सिस्टम कर दिया कि अब किसी भी दफ्तर में काम कराने के लिए जाने की जरूरत नहीं है। आप फोन करो, बोलो कि मेरे को ये काम कराना है, सरकारी दफ्तर से एक अफसर आपके घर आता, आपके घर आके काम करके जाता, आपको सरकारी दफ्तर में जाने की जरूरत नहीं है। गुजरात में भी सिस्टम चालू करेंगे, आपको किसी सरकारी दफ्तर में जाने की जरूरत नहीं है। आप फोन करना, आपके घर आके सरकारी अफसर आपका काम करके जाएंगे, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है, सबसे बड़ी समस्या, हम बहुत सारी जनता से बात कर रहे हैं, महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है। महंगाई को दूर करने के लिए, बेरोजगारी को दूर करने के लिए हमने पूरा प्लान बनाया है। हर महीने कम से कम 25 से 30 हजार रुपए महीने का आप लोगों को फायदा कराएंगे। कैसे? 1 मार्च के बाद से आपकी बिजली का बिल 0 हो जाएगा, आपको बिजली का बिल देने की जरूरत नहीं है। दिल्ली में 24 घंटे बिजली आती है, फ्री बिजली आती है, 0 बिजली का बिल आता है। पंजाब में 24 घंटे बिजली आती है, फ्री बिजली आती है, 0 बिजली का बिल आता है। 1 मार्च से आपका भी बिजली का बिल 0 आना चालू हो जाएगा। कितना आता है आपका बिजली का बिल? 2000 3000 रुपए महीना आता है कि नहीं आता? 3000 मान लेते हैं, 3000, तो 3000 रुपए महीना आपका बिजली का बचेगा। फिर आपके जितने बच्चे हैं आपके घर में, उन बच्चों को एक एक बच्चे की फीस 3000 रुपए, कम से कम 3000 रुपए एक बच्चे के ऊपर खर्च हो जाते हैं। उसकी फीस है, उसकी कॉपी किताब है, उसकी ड्रेस है, सारा मिला मिलू के एक बच्चे पे 3000 रुपए महीना खर्च हो जाते हैं। अब आपको खर्चा करने की जरूरत नहीं है। दिल्ली में हमने बच्चों के लिए शानदार स्कूल बनाए हैं, वहां पे सब कुछ फ्री है, सारी पढ़ाई फ्री है, कॉपी किताबें, ड्रेस, सब कुछ स्कूल से मिलती है। अमीरों के और गरीबों के बच्चे एक साथ बैठ के पढ़ते हैं, एक ही डेस्क पे। जज का बच्चा, आईएएस का बच्चा और रिक्शे वाले का बच्चा एक साथ बैठ के पढ़ते हैं। अब रिक्शे वाले का बच्चा इंजीनियर बन रहा है, डॉक्टर बन रहा है, मजदूर का बच्चा इंजीनियर बन रहा है, डॉक्टर बन रहा है। आपके बच्चों को भी अच्छा भविष्य देंगे, आपके बच्चों के लिए शानदार स्कूल बनाएंगे। अब आपके बच्चों को फीस देने की जरूरत, बच्चों के लिए फीस का पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छी पढ़ाई मिलेगी, फ्री में शिक्षा मिलेगी। तो कम से कम 10,000 रुपए, अगर 3 बच्चे आपके घर में पढ़ाई कर रहे हैं, 10,000 रुपए आपके बच्चों की फीस, आपके बच्चों की पढ़ाई के बचेंगे। फिर भगवान ना करे आपके घर में कोई बीमारी हो, अगर आपके घर में कोई बीमार होता है, उसके सारे इलाज का खर्चा सरकार देगी। दिल्ली में 2 करोड़ लोग हैं, हमने दिल्ली में शानदार अस्पताल बनाए हैं, खूब सारे मोहल्ला क्लिनिक खोले हैं, सारे सबका 2 करोड़ लोगों का, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, सबका इलाज मुफ्त कर दिया। बुखार है, सारा टेस्ट, सारी दवाइयां सब फ्री। कैंसर हो गया, बड़ी बीमारी हो गई, 10 लाख रुपए का भी खर्चा आएगा, सब कुछ फ्री होगा। तो हर महीने कम से कम 5-7 हजार रुपए तो परिवार के दवाइयों में खर्च हो जाते हैं। तो 5,000 रुपए मान लो, 3,000 रुपए बच गए बिजली के, 10,000 रुपए बच गए बच्चों की शिक्षा के,
5,000 रुपये महीना बच गए दवाइयों के, डॉक्टर के, टेस्ट के, 5,000 रुपये स्वास्थ्य के। जितनी महिलाएं हैं, हर महिला के अकाउंट में हर महीने 18 साल से ऊपर की हर महिला के अकाउंट में 1,000 रुपये डालेंगे। तो मान लीजिए आपके घर में 3 महिलाएं हैं, सास है, बहू है, बेटी है, तो 3,000 रुपये महीना आपको महिलाओं के मिलेंगे। और अगर आपके घर में कोई बेरोजगार है, उसके लिए रोजगार का इंतजाम करेंगे। 5 साल में मैंने दिल्ली में 12 लाख बच्चों के लिए रोजगार का इंतजाम किया है। भगवंत मान साहब ने अभी 6 महीने में 20,000 सरकारी नौकरियां निकाली हैं। हमें रोजगार देना आता है, रोजगार का इंतजाम किया है, दिल्ली में भी, पंजाब में भी। गुजरात के एक एक बच्चे के लिए रोजगार का इंतजाम करेंगे। और जब तक रोजगार नहीं मिलता, हर महीने 3-3 हजार रुपए बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। तो अगर आपके घर में 2 बेरोजगार हैं, 6,000 रुपए आपके बेरोजगारी भत्ते के हो गए। तो हिसाब लगाओ, 3,000 रुपए हो गए बिजली के, 10,000 रुपए हो गए बच्चों की शिक्षा के, 5,000 रुपए हो गए दवाइयों के, टेस्ट के, 3,000 रुपए हो गए महिलाओं के, और 6,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता। 27,000 रुपए हर महीने हर परिवार को बचत हुआ करेगी। अभी थोड़े दिन पहले प्रधानमंत्री जी आए थे, गुजरात को 30,000 करोड़ रुपए का पैकेज देके गए हैं। ठेकेदारों की ऐश हो गई, मंत्रियों की ऐश हो गई, पार्टी कर रहे हैं सारे। 30,000 करोड़ रुपए। आपको क्या मिला? 30,000 करोड़ रुपए में से कुछ मिला? मैं आपको 30,000 करोड़ का पैकेज नहीं दे सकता। मैं आपका हर महीने 30,000 रुपए का फायदा करा सकता हूं। आम आदमी पार्टी की सरकार आ गई तो ये सारे मेरे पीछे पड़े हुए हैं, कहते हैं केजरीवाल सब कुछ फ्री दे रहा है, सब कुछ फ्री दे रहा है। केजरीवाल पैसे खाता नहीं है, केजरीवाल स्विस बैंकों में नहीं ले जाता, केजरीवाल प्रॉपर्टी नहीं बनाता, कोठियां नहीं बनाता, जमीनें नहीं खरीदता। केजरीवाल सारा पैसा जनता पे लुटा देता है, जनता को वापस कर देता है। मैं कहता हूं मैं स्कूल बनाऊंगा, कहते नहीं नहीं स्कूल नहीं बनाने, हमारे लूटने के लिए पैसा नहीं बचेगा। मैं कहता हूं मैं बिजली मुफ्त करूंगा। ये विरोध क्यों करते हैं मेरा? वो विरोध इसलिए करते हैं, उन्हें लगता है अगर केजरीवाल ने बिजली मुफ्त कर दी तो इनके पास लूटने को पैसा नहीं बचेगा। केजरीवाल ने स्कूल बना दिए तो इनके पास लूटने को पैसा नहीं बचेगा। केजरीवाल ने अस्पताल बना दिया तो इनके पास लूटने को पैसा नहीं बचेगा। ये दोनों पार्टियां इकट्ठी हो गई हैं, दोनों मेरे को गालियां देती हैं, खूब गालियां देती हैं। केजरीवाल राक्षस है, केजरीवाल ठग है, केजरीवाल महाठग है। इस बार जब वोट डालने जाओ, झाड़ू का बटन इतनी जोर से दबाना, बता देना राक्षस कौन है और ठग कौन है इन लोगों को। कहते हैं डबल इंजन की सरकार, दोनों इंजन पे जंग लग गया, इस बार नया इंजन ले आओ। नए इंजन की सरकार, नया इंजन आ गया मार्केट में, नई टेक्नोलॉजी, 21वीं सदी का इंजन है। आम आदमी पार्टी आई है, नया इंजन, नए चेहरे, नई राजनीति, नई सोच। जैसे जब बारिश आने वाली होती है तो ठंडी ठंडी हवा चलती है ना, ऐसे ही आम आदमी पार्टी ठंडी हवा का झोंका है। नई नई पार्टी आई है, नई पार्टी लेके आओ इस बार। ये 27 साल वाली पार्टी को हरा दो और नई सोच वाली पार्टी लेके आओ। इस बार तो सारे भाजपा वाले भी भाजपा को हराने में लगे हुए हैं, है कि नहीं है? सारे कह रहे हैं कि बहुत घमंड हो गया इनको, और सबको कोरोना याद करना। कोरोना के टाइम में भाजपा के कार्यकर्ताओं का फोन नहीं उठाया भाजपा के नेताओं ने। भाजपा के कार्यकर्ताओं ने जिंदगी दे दी भाजपा के लिए, पूरी जिंदगी भाजपा के लिए खून पसीना बहाया। लेकिन घर में जब कोरोना के टाइम में कोई मर रहा था और भाजपा के नेता को फोन कर रहे थे कि अस्पताल में बेड दिला दो, किसी भाजपा के नेता ने फोन नहीं उठाया। तो भाजपा के वाले भी इस बार हराना चाहते हैं इनको, उन्होंने भी मन बना रखा है, लेकिन वो पार्टी छोड़ के आ नहीं सकते हमारे साथ। वो कहते हैं जी बहुत गंदे लोग हैं, ये हमें हमारा धंधा चौपट कर देंगे। तो मेरे सारी भाजपा के लोगों से निवेदन है, आम आदमी पार्टी में आने की जरूरत नहीं है, भाजपा में ही रहो, अंदर खाने बैठ के उनको हराओ, अंदर से बीजेपी को हराओ, आम आदमी पार्टी को जिताओ। आप लोगों से मेरी 2 विनती है। मैं पहले वादा करके जा रहा हूं, गारंटी देके जा रहा हूं,
जितनी बातें मैंने कही सारी पूरी करूंगा। बिजली भी मुफ्त करूंगा, शानदार स्कूल बनाऊंगा, दिल्ली में बनाए हैं, मेरे को बनाने आते हैं। इंजीनियर हूं, पढ़ा लिखा आदमी हूं, मेरे को राजनीति करनी नहीं आती, गंदा गाली गलौज करना नहीं आता, भ्रष्टाचार करना नहीं आता, गुंडागर्दी करनी नहीं आती, सड़क बनानी आती है। इंजीनियर हूं, सड़क बनानी आती है, बिजली देनी आती है, मुफ्त में बिजली देनी आती है, अस्पताल बनाने आते हैं, स्कूल बनाने आते हैं। तो मेरी आपसे दो विनती है। पहली, यहां से जब जाओगे, बाहर निकलोगे, अपने अपने फोन निकालना, व्हाट्सएप खोलना और व्हाट्सएप पे जितने कांटेक्ट हैं, आपके दोस्त हैं, आपके रिश्तेदार हैं, सबको मैसेज करना कि मैं इस बार आम आदमी पार्टी को वोट दे रहा हूं, मेरे भाई तू भी एक बार इस बार आम आदमी पार्टी को वोट दे दे। सबको मैसेज कर देना जितने कांटेक्ट लिस्ट में है। करोगे मैसेज? कौन कौन करेगा? हाथ खड़े करें। पक्का? प्रॉमिस? झूठ तो नहीं? अभी बाहर निकल के आधे घंटे में सब लोग कर देना। दूसरा प्रॉमिस, आप वापस जाओगे अपने गांव में, अपने मोहल्ले में, अपनी गली में, एक एक आदमी को 100-100 लोगों को जाके मनाना है आम आदमी पार्टी को वोट देने के लिए। मनाओगे? घर घर जाना पड़ेगा। देखो, हमारे पास पैसे नहीं है, हम बहुत ईमानदार लोग हैं, मेरे बैंक अकाउंट में भी नहीं है, हमारी पार्टी के बैंक अकाउंट में भी नहीं है, हमारे किसी नेता के पास पैसे नहीं है। हमारी सबसे बड़ी ताकत आप लोग हो, आपका साथ चाहिए। अगर आपने साथ दिया तो इस बार इनका 27 साल पुराना शासन उखड़ जाएगा और एक नई उम्मीद पैदा होगी पूरे गुजरात के अंदर। भारत माता की। બધા મિત્રો પોતપોતાની જગ્યાએ ઊભા થજો. આપણે રાષ્ટ્રગાનથી બધા ગાઈને પછી છૂટા પડીશું. બધા જ મિત્રો. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्ज्वल जलधि तरंग। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा। जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। लोक अधिकार માટે ગણજનના હિત માટે ગુજરાતમાં બદલાવ માટે